So, the aim of Discovery of an Author podcast is to make more people read, think, and get access to genuine information and not fake. In this episode of Discovery of an Author, we sit down with journalist and author Ruhi Tiwari. Ruhi has nearly 2 decades of experience covering politics, policy, and their intersection for India's leading media organizations, known for combining rigorous ground reporting with sharp data analysis. She has produced some of the most credible election reportage in recent years. In today's episode, we discuss her very important and powerful book called What Women Want. In this book, Ruhi travels across states and communities to understand how Indian women vote and why, blending fieldwork, data, and political insight. I think this is a very powerful episode and a subject that people know nothing about. A must watch for all the women and female listeners out there. And if you do decide to listen to this podcast to its entirety, then these are the things that you are going to learn from this episode. And if you find the conversations valuable, then I would humbly request you to subscribe. And if you do not find them valuable, I will never force you to subscribe. I really hope you enjoy this episode. You know, it is always great. I love interacting with journalists because this is my favorite area. I feel the kind of things you people know, no one else do. We look at the views, we look at the news, right? And I think news में भी क्या होता है ना, जो सबसे ज्यादा speculations होता है, we pick that and we start discussing around that. अब वो सत्य है नहीं पता होता हम लोगों को, किसी को नहीं पता होता. People pick what they want to pick, not necessarily what is the truth. You know, so that is why whenever I interact with journalists, I think it's a privilege, and thank you for accepting this invitation, Ruhi. No, my pleasure. I want to tell people that What Women Want is a brilliant book, absolutely brilliant, and it is so to the point. I read the book in a week's time. I made all my good notes because it is absolutely brilliant. And after reading the book, Ruhi, I thought that I am the right person to have a conversation with you because I'm a man. And I think it's because you get to know so much that, Right. you know, you would never have even questioned, right? When I first saw the title, that is when I discovered your book. I first saw the title, I was like, What Women Want? I'm like, finally, a woman is telling men what women want. And then I was like, you know, this is about understanding the female voters in modern India. But a really powerful, I think this is something that everyone should read, a kind of book, Ruhi, that I would want to gift it to my mom, to my sister, Thank to my you. That's so girlfriend and kind of wife. you. It's a fact, right? Because Thank you, Raghav. उनसे कौन पूछता है? मैं अगर वोट करने भी जा रहा हूं, ओके, आई एम फ्रॉम जयपुर, और मैं हर पॉडकास्ट में ये चीज जरूर बोलता हूं कि मैं वैसे यूपी से हूं, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्चिकल सोसाइटी. इवन राजस्थान फॉर दैट मैटर, इट्स नो लेस पेट्रियार्चिकल, राइट? जब हमने वोटिंग के बारे में सोचा, रूही, जब ये वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुआ, जब वोटर कार्ड बना, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी मम्मी से एक बार भी पूछा होगा या डिस्कशंस भी करे होंगे इस चीज के अलावा. इट वॉज ऑल मेन टॉकिंग, मेन सिटिंग, एंड आई वॉज जस्ट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम माई डैड. मैं तो, एंड आई हैव टू स्टेट समथिंग, और मैं इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं. कभी उनसे पूछा भी नहीं मैंने कि उन्होंने किसको वोट करा, और मुझे ऐसा लगता है वो वही वोट करेंगी जो उनका पति बोलेगा. आई एम जस्ट सेइंग जनरली स्पीकिंग, आवर मदर्स, राइट, कि ओके, इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मम्मी तो वही वोट करेंगी. अगर पापा ने कांग्रेस को दिया तो मम्मी ने भी कांग्रेस को दिया होगा, क्योंकि पापा ने कांग्रेस को दिया, क्योंकि दादा कांग्रेस को देते थे. तो पहले तो ये चीज मैं आपसे एड्रेस करना चाहता हूं, आपका इस पे क्या टेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग? डू यू बिलीव दैट यस, दिस हैज बीन द रियलिटी ऑफ द फीमेल वोटर्स इन इंडिया? इफ यस, व्हाई?
No, so naturally, this has been the case with a large majority of female voters in India for decades, right? India is a great example of equality without actual equality. Because when we became independent, unlike many other countries in the West, we started with universal adult franchise, where women got as much of a right to vote as men, right? We know in several countries in the West they had to fight for the right to vote. But while women on paper, and actually not just on paper, constitutionally had the right to vote, they didn't have the agency to exercise that right to vote as per their own thinking, as per their own independent aspirations, desires. And that's because of how our society is skewed as far as gender is concerned. We live and we continue to live in a very patriarchal society where there is a lot of lack of equity between men and women. It's not an equal, it's not a level playing field. It never has been. And women were largely kept in the margins, on the peripheries, and the awareness that women were allowed to access was very low, and which is why perhaps what you are saying, that's where it stems from, कि अगर पति ने कांग्रेस को दिया है या मेरे पिताजी ने कांग्रेस को दिया है, बड़े भाई ने या जिसने भी सरपंच ने बोला है कांग्रेस को दो या भाजपा को दो, क्योंकि उन महिलाओं को उससे ज्यादा शायद खबर नहीं थी, उससे ज्यादा शायद उनके पास इस बात का ज्ञान नहीं था कि किनको और वोट दिया जा सकता है और क्यों किसी और को वोट दिया जा सकता है। और वही जो चीज है, वही क्रक्स है इस एवोल्यूशन ऑफ वुमेन वोट इन इंडिया का। क्योंकि देखिए, जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह है, राइट? डेटा टेल्स इट्स ओन स्टोरी, डेटा टेल्स यू हाउ वुमेन आर वोटिंग इन लार्जर नंबर्स, द टर्नआउट हैज, it's right now equal to that of men. In many states it surpasses that of men. Sure, Bihar mein humne dekha hai ki absolute numbers mein bhi women were actually more, not just in terms of relative numbers, but um, वो अपनी जगह एक कहानी है। दूसरी कहानी जो इसके साथ साथ ही चलती है वो ये है कि ज्यादा संख्या में आके महिलाएं वोट दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो मतदान को उसी स्पिरिट में ले रही है। या मतदान का मतलब ही ये है, तो अपने मत से वो वोट दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो देखिए, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, राइट? इंफॉर्मेशन बूम जो हुआ है इंडिया में और पूरे विश्व में ही हुआ है, दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। बट मोर इम्पोर्टेंटली, नाउ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिसी मेकर्स आर टॉकिंग अबाउट वुमेन इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर, राइट? पहले अगर आप एक इलेक्शन स्पीच में भाई और बहनों बन के आप खत्म हो जाते थे, बहनों में आपका मेंशन खत्म हो जाता था। अब इलेक्शन स्पीच पूरी पूरी आपको डिवोट की जा रही है, आपके लिए ये स्कीम आ रही है, आपके लिए ये कैश ट्रांसफर आ रहा है, आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। जब प्रधानमंत्री देश के लाल किला से बोलते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या महिलाओं को शौचालय मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, या कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें करती हैं, तो विमेन, महिलाएं अपने आप को इस प्रोसेस का एक हिस्सा मानने लगती हैं। सो दे नाउ फील इन्वेस्टेड इन दिस एंटायर process. They feel like stakeholders, and because they feel like stakeholders, they are going out voluntarily to vote, because they know that it's actually an instrument of assertion. It's not just a box to be ticked कि किसी ने कह दिया तो आप जाके वोट दे दे। अब उनको पता है कि ये अपने आप को, अपना जो मत है उसको आगे रखने का उनके पास एक जरिया है, और वो ये सोच के जाके अब वोट दे रही है, बिकॉज नथिंग एल्स एक्सप्लेन्स द लार्जर नंबर्स। See, the registration, the electors figure, which is the number of people registered to vote, hasn't changed over the last few decades. Of course, it has changed since the first election in 51. बट पिछले कुछ सालों में इतना नहीं बदला है, लेकिन जो एक्चुअल वोटर्स है, जो जाके वोट दे रहे हैं, वो बदला है। तो वो क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है क्योंकि महिलाएं खुद, एज आई सेड, वॉलंटरली जाके वोट दे रही हैं। एंड दैट, वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो चाह रही है वोट देना। और वो क्यों चाह रही है वोट देना? क्योंकि उनको पता है कि अब उनका भी एक वोट है जो मायने रखता है, और उनकी एक सोच है जो मायने रखती है। तो टुडे दे आर बीइंग heard, their vote is being felt, and the power of their vote is actually now being exercised in a very concerted manner. रूही, इसमें एजुकेशन का क्या रोल है? देखिए, मैं देखिए, हाँ कि
Is it a factor? Is it a major factor that why now they are exercising their right and also understanding what needs to be done? देखिए, एजुकेशन को एक इट्स अ मोर होलिस्टिक टर्म। मैं अगर लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, Yes. तो लिटरेसी में अभी भी गैप है इन लिटरेसी नंबर्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, बट आई वुड टेक इट एज मोर ऑफ एन एजुकेशन, दिस विच इज बोथ लिटरेसी प्लस अवेयरनेस, राइट? और वो एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली हैज बीन ऑन एन अपवर्ड ग्राफ, इन विच इज व्हाई वुमेन आर गोइंग एंड वोटेड। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि लिटरेसी और वोटिंग, लिटरेसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, का कोई बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ज्यादा वोट दे रही हैं, या जो नहीं, जो अनपढ़ है वो कम दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको अवेयरनेस पे ज्यादा पेग करती हूँ, और इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस पे ज्यादा पेग करती हूँ एज कंपेयर टू प्योरली लिटरेसी। इसमें रूही एक और चीज मैं सोच रहा था जब मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, मैं ये जानना चाहता था। अब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, चलो आप लिटरेसी हटाइए, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। इसमें कहीं ना कहीं पर इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन रूरल वर्सेस अर्बन व्हेन इट कम्स टू फीमेल वोटर्स? कुछ यहां ट्रेंड दिखता है क्या? चाहे वो अवेयरनेस के बारे में हो, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में हो, चाहे वो एस्पिरेशन के बारे में हो, तो इज देयर similarities or differences between what the female voters aspire or want in an urban environment as against a rural? ये क्या दिखता So है? see, women voters are like any other voter group. It's not a homogeneous unit, right? It's Yeah. not a monolith. ऐसा नहीं है कि सब एक साथ ही एक डायरेक्शन में वोट करती हैं या एक कारण से वोट करती हैं। उनके वोटिंग मोटिवेशंस, ड्राइवर्स अलग है, और उसमें सिर्फ अर्बन रूरल ही एक डिवाइड नहीं है। इनफैक्ट मैं नहीं सोचती हूँ कि अर्बन रूरल उतना बड़ा डिवाइड है जितना कि डिवाइड है आपके एजुकेशन का, या आपके सोशल क्लास का, या आपके Caste. कास्ट का, या आपके फेथ का, या आपके सोशल स्टेटस का। वो सारी फैक्टर्स, वो सारी आइडेंटिटीज भी बीच में आती हैं, और वो सारी आइडेंटिटीज भी उसी तरह के डिफरेंसेस लाती हैं, चाहे आपका रीजनल आइडेंटिटी हो, एथनिसिटी हो। तो आई डोंट बिलीव अ रूरल वुमन इन मेघालय इज वोटिंग द सेम way as a rural Yeah. woman in Rajasthan, just as I don't believe an urban woman in Kashmir is voting for the same motivations as an urban woman in Tamil Nadu, right? Yeah. So I don't think urban rural का उतना that's not the only and the most significant gap. I think ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको मैंने बुक में एड्रेस करने की Yeah. कोशिश की है, कि इतनी इतनी सारी आइडेंटिटीज होती हैं, आप इतनी सारी पहचान के साथ आप भी, मैं भी अपना अपना लाइफ लीड करते हैं, तो वो वुमेन वोटर्स के लिए भी इट कम्स इन एज अ क्वेश्चन। रूरल अर्बन इन पर्टिकुलर, इनफैक्ट फेमसली इन इंडिया हम जानते हैं कि रूरल इंडिया इज नोन टू वोट मोर देन अर्बन इंडिया, राइट? Yeah. In terms of numbers, always rural India has more voter turnout than urban India. और वो आपको, आप ग्राउंड पे भी जाते हैं, आपको दिखता है कि द काइंड ऑफ इंटरेस्ट, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर इज इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस इज लार्जर, इज मोर significant in rural areas as compared to urban areas. That's why it's easier to report from rural areas on elections and get people to talk than from urban areas. But so that I suppose is true even for women voters, कि जो गांव की महिलाएं हैं वो अब ज्यादा सशक्त अपने आप को महसूस करती हैं वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये रूरल अर्बन उतना divide, that is not the divide. There are many divides, and there are many complementing factors and many contradicting factors also. Yeah, beautiful. रूही, अब मैं ना आपसे एक थोड़ा फिलोसॉफिकल और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं, एंड एज अ मैन आई रियली वांट टू नो कि क्या हमारी भी गलती रही है? अब जैसे ये किताब है व्हाट वुमेन वांट, अच्छा ठीक है, एक एनालॉजी लेते हैं अपन स्कूल की। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, नर्सरी, प्री स्कूल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी स्कूल है उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो जब सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो वो इज लाइक द गवर्नमेंट बॉडी, इज लाइक द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्कूल। सो व्हेन दे आर मेकिंग द करिकुलम, वो करिकुलम ऐसे नहीं बनता कि ओके लेट्स क्रिएट अ करिकुलम कीपिंग इन अ मेल स्टूडेंट इन माइंड ऑफ व्हाट ही वांट्स एंड कीपिंग अ फीमेल स्टूडेंट इन माइंड व्हाट नहीं होता है। साइंस इज साइंस, इंग्लिश इज इंग्लिश, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। ठीक है, क्लियर होता है, उन्हें पता होता है कि बच्चों को यह पढ़ाना है, उसमें मेन वुमेन का तो सवाल ही नहीं उठता है।
But when it comes to elections, governing a nation, इस बुक का नाम What People Want नहीं है. क्यों नहीं है? Why is it what women want? So what I'm asking, when it comes to governing a country, in the end people want, what they want. हम इस इकोसिस्टम में मेन और वुमेन को डिवाइड क्यों करते हैं? क्या सही में मेन और वुमेन की वांट्स अलग है, आस्क ही अलग हैं? क्या ये आपके टारगेट सेगमेंट ही डिफरेंट है, भले ही ये एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं? बिकॉज अगर मैं आज एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मैं को टीजी अपनी बनाता हूं, मैं एक टारगेट सेगमेंट बनाता हूं कि यार ओके, आई एम लेट्स से क्रिएटिंग any face cream which is specifically designed for women. Let's say I also want to create a brand which is for men. So when it comes to governing, why is there a difference in what a man would want as against what a woman would want? देखिए, इसका एक सिंपल जवाब है इन टर्म्स ऑफ हाउ आवर सोसाइटी इज। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आज कि बहुत अनइक्वल सोसाइटी रही है। जब विमेन फॉर सेंचुरीज हैव बीन केप्ट ऑन द मार्जिन्स, देयर नीड्स हैव बीन इग्नोर्ड एंड दे हैवंट बीन गिवन व्हाट मेन हैव बीन गिवन, राइट? अभी तक जिस तरह की कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो हमेशा मेल सेंट्रिक, मेल गेज से ही होती है। एक मेल पर्सपेक्टिव है और एक मेल टारगेट ग्रुप है। women have never been a target group, तो इसीलिए a lot of their needs have not been met so far, which is why it becomes important to talk about them separately and to understand what their needs are, because they are, अब देखिए reservations क्यों होती हैं, आरक्षण की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि there have been historical wrongs and because of those historical wrongs level playing field नहीं है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए आरक्षण लाते हैं। तो सेम रीजन व्हाई यू नीड टू टॉक अबाउट वुमेन separately and address them as a separate target group is because it hasn't been a level playing field and you have to bring them at par by addressing their needs. And naturally women's needs are more unique, are different from that of men, क्योंकि जिस तरह की आपकी सोशल रियलिटीज है, सोशल कंडीशनिंग है और जिस तरह की आपका इंटरफेस विद सोसाइटी एंड लाइफ है वो अलग है एज कम्पेयर टू मेन, राइट? एक सिंपल सी चीज है, जैसे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, जो शौचालय की स्कीम बीजेपी सरकार लाई थी, वो क्यों वुमेन के लिए टारगेटेड है? क्योंकि इट वाज नॉट समथिंग दैट रियली बॉदर्ड मेन। उनके लिए अनसेफ नहीं था जाना फील्ड में, उनके लिए अनकंफर्टेबल नहीं था जाना फील्ड में। वो जाते थे, वो अपने आप टू रिलीव देमसेल्व्स, वो खेतों में सुबह 4 बजे 4-5 बजे, लेकिन फॉर वुमेन इट वाज अ great matter of safety and dignity both, and which is why you needed to address it separately for women. कैश ट्रांसफर स्कीम्स वुमेन के लिए क्यों चाहिए आपको? आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि women don't have a source, many women don't have a source of income because they are not allowed to go out of their homes and work. There aren't enough jobs available nearby in their villages for them to be able to go and work, which is why they need this aid so that they have some financial and economic agency which gives them a way to have an equal say in the household. क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सिर्फ अपने हस्बैंड या अपने पिताजी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आपके घर में इज्जत और आपके घर में जो एक स्टेटस है वो उतना ही रहेगा। Why did a scheme like say नरेगा need to have, और whatever, अब नाम बदल गया है स्कीम का, जो भी नाम हो गया है, उसमें 33% आपको क्यों चाहिए था टू रिजर्व फॉर वुमेन? 1/3 उसमें वुमेन के लिए रिजर्व था। क्यों था? क्योंकि men could go out of their villages, they could go to neighboring villages, they could go to cities to work, but women couldn't do that. They needed an opportunity close to their house which would give them employment, which would give them income, right? Safety क्यों women के लिए होता है हमेशा? क्योंकि men are not unsafe on the roads ना। I mean, of course everybody is unsafe, but men are not half, 1/4 is unsafe as women are, right? So there are unique needs that women bring with them, that women come up with them. ये उज्ज्वला क्यों जरूरी था? अब मर्द तो गांव में नहीं खाना बना रहे हैं चूल्हे पे, औरतें ही बना रही हैं, तो औरतों के लिए जरूरी था उनको टारगेट करके उनके हेल्थ और उनके कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम को देखना। रूरल हाउसिंग में ये क्यों बना है कि या तो जॉइंट नेम में होगा या महिला के नेम में होगा? क्योंकि women don't have assets, right? Only men seem to have the right to assets in our society. So to give women assets and hence some kind of social security and social status was that scheme introduced. So बहुत reasons हैं why you need to target women specifically and target their needs specifically. Because as a layman, as a man who is ignorant, I mean, because you are absolutely right. We know that we're living in a man's world. I'll give you an example, and I think it's very important to take this example. मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम बात कर रहे थे,
और बात आई मेल फ्रेंडशिप वर्सेस फीमेल फ्रेंडशिप की। तो वो मेरी फ्रेंड कहती है कि राघव, तुम लोग फ्रेंड्स जो गाइस फ्रेंड्स हो, तुम्हारी तो अलग ही लेवल की फ्रेंडशिप, अलग ही लेवल का होता है, हमारा ऐसा नहीं होता है। एंड आई थॉट अ लॉट अबाउट इट एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा यू नो द रीजन व्हाई मेल फ्रेंडशिप इज सो आउट देयर, सो लाउड, सो कि अरे यार चल कोई बात नहीं, मैंने कहा बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मैन्स वर्ल्ड। मैं अगर रात को अपने दोस्तों के साथ 10 बजे बाहर निकलूं, मुझे पता है आई एम रिलेटिवली सेफ। कैब ड्राइवर को बुक कराऊंगा वो भी लड़का होगा, किसी पनवाड़ी से सिगरेट लूंगा वो भी लड़का होगा, जिस बार में जा रहा हूं जो मुझे ड्रिंक सर्व कर रहा है वो भी लड़का है। तो वी नो दैट देर इज नो थ्रेट। So we as men could be open when they're talking about our camaraderie and we are sharing our whatever. Girls cannot do that. They always have to be very careful of where they are and what they're doing. तो जब हम ये स्कीम सुनते हैं कि गवर्नमेंट महिलाओं के लिए कर रही है, पहला चीज तो ये आता है कि अरे यार ये तो वो कर रहे हैं, अपीज ही कर रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू थिंक दैट यस, बाय नेचर ऑल्सो देयर नीड्स आर डिफरेंस एंड दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू एड्रेस। ये हमेशा एक चीज दिमाग में आती है, तभी ये हम लोगों को एज एन अपीसमेंट लगता है कि अरे यार ये तो देखो अपीज ही करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट दीज आर द एक्चुअल नीड्स एंड इट वेरीज from a needs of a man. Ruhi, Then मैंने see, to sorry. address any kind of discrimination, and there can be little doubt that there has been or there continues to be massive gender discrimination. To address any kind of discrimination, you need targeted policies towards the discriminated class, right? And that's the whole crux of it. Yeah. Ruhi, now I have taken brilliant highlights from your book, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें, बिकॉज वेरी पावरफुल थिंग्स यू हैव मेंशन। कुछ कुछ ये तो मुझे, I mean, it was eye-opening to be very honest with you. That's why I said from a man's perspective, this is genius of a thing that you have written. Okay. एक चीज जो मैं, हालांकि आपने एड्रेस करा हुआ है एंड आई डू अंडरस्टैंड कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा रहा है, बट फिर भी मैं आपसे वापस पूछूंगा। शुरू के पेजेस में देयर इज दिस लाइन, आई थिंक इन इनिशियल पेजेस व्हेन यू स्टार्टेड विद योर रिपोर्टिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स एंड एवरीथिंग इन, तो आपने लिखा है कि आई रिकॉल फाइंडिंग द बैलेंस इन जेंडर among the hardest to achieve when I first started covering elections. It wasn't always easy to find women willing, it wasn't always easy to find women willing to speak openly, to draw them out and to get them to express their political views, aspirations, and anguish. Why is the societal subjugation of women the reason why they were not willing to speak openly? Yes, so just to clarify to your viewers, essentially what I have tried to say, this is I think in my author's note, right? Yeah. Is that so I covered my first election in the winter of 2008, which was your home state, my home state as well, Rajasthan, right? It's a deeply patriarchal society. We all know the Ghungat culture has been infamous, so on and so forth. As journalists, पत्रकारों को हमेशा कहा जाता है कि एक बैलेंस्ड व्यू आप लाइए, तो आप कुछ भी कवर करते हैं आपको हर स्टेक होल्डर से उतनी ही बात करनी है ताकि आपके पास एक होलिस्टिक पिक्चर आए। तो इलेक्शंस का भी, ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी सेम मंत्र है कि आप हर क्लास, हर हर फेथ, हर कास्ट, हर जेंडर के आइडेंटिटीज को आप कवर करें ताकि आपको एक पूरा पिक्चर मिले कि किस तरह का चुनाव है और किस तरह का लोगों को क्या मत है। उसमें इट ऑलवेज वाज डिफिकल्ट टू फाइंड वुमेन बिकॉज either they were not aware enough or they were scared to speak up, because see, they as I said, they've always faced discrimination, they've always been marginalized, they've always been told कि आपको क्या पता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप चुप रहिए, आप राजनीति तो is a men's world, it's a dirty world, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ, आप बोलते क्यों हैं, आप चुप रहिए। तो they were never encouraged to speak, and which is why it was always difficult to either, even if either they were not aware or they were not willing to speak or they were scared to speak, कि भाई आसपास कोई सुन लेगा फिर बोलेंगे तुमने क्यों बात की, तुम्हें क्या पता है, आप क्यों किया ऐसा। तो बिकॉज ऑफ दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट women to open up. And I think it was also something that journalists fell prey to because men were more flamboyant in the expression of political and electoral preferences. So they made for great sound bites, they made for great quotes. So I think, everybody just ignored women कि चलिए क्या ही कुछ बोलेंगी, दो शब्द भी तो अच्छा sound bite नहीं आएगा, अच्छा quote नहीं बनेगा, तो हम let's just speak to men and, pass that off.
But somewhere down the line, that started changing, right? And which is why we are seeing the kind of importance women voters are getting today. Because today you can't cover an election without speaking to women. आप कर ही नहीं सकते. आप बिहार में सोचिए आपने कैसे आपने इलेक्शन कवर ही नहीं किया अगर आपने women voters से वहां बात नहीं की. तो इसीलिए वो चीज बदल गई है और वो ही that is actually the truth of the evolution of women voters from the point of view of journalists. क्योंकि we started off from trying to draw them out, but tempted to not waste our time as it was seen. कि आप इसमें इतना टाइम वेस्ट करेंगे ये तो 10-15 मिनट में 2 लाइन बोलेंगे उससे अच्छा आप 4 आदमियों से बात कर लीजिए वो आपको बढ़िया बढ़िया कोट दे देंगे और to now realizing that without speaking to an adequate number of women in your sample size, your analysis is totally flawed. Have there been certain states जहां पर आपको लगा हो कि नो यार वुमेन आर रियली एक्टिवली हैव ऑलवेज बीन अ पार्टिसिपेंट एंड वेरी ओपन इन व्हाट दे वांट? कुछ ऐसे स्टेट्स हैं क्या? Obviously, southern states are quite they're known to be more liberal. They're known to be more progressive. They're known to have women being more vocal. Kerala, Tamil Nadu, सब में before even before it hit the rest of the country, women voters were Yeah. expressing themselves more. क्योंकि देखिए आप जब देखिए आंध्रा में तमिलनाडु में नेता भी ऐसे रहे हैं ना एनटीआर एमजीआर जयललिता जयललिता, जिन्होंने विमेन वोटर्स को अपने पॉलिटिक्स का सेंटर बनाया है बंगाल. क्योंकि उन्होंने बंगाल तो बाद में ममता बनर्जी तो बहुत बाद में आई बट इन लोगों ने अपने पॉलिटिक्स का सेंटर बनाया था women को so that's why women in these states and in even Kerala because of the kind of left culture there has been they've on because of the socio-economic indicators they have always been more vocal and easier to speak with right but that was lacking in most other parts of the country which is what is changing now अब ये जो change है ये बिहार में तो मैं बोलूंगी 2005 से होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि जब नीतीश कुमार आए थे अपने फर्स्ट फुल टर्म के लिए उनका उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिसी का बहुत क्लियर मैंडेट था कि विमेन आर द सेंटर ऑफ माय पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज और सब बाइसिकल योजना को सब जानते हैं लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रिजर्वेशन फर्स्ट 50% रिजर्वेशन उन्होंने पंचायत में बिहार में ही हुई नीतीश कुमार ने वो लाए थे 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन टीचिंग जॉब्स एक्सेट्रा नीतीश कुमार हैड गॉट तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की थी तो बिहार में मेरा ये मानना है कि आज नहीं 20 साल से महिलाएं ज्यादा एक्टिव है पॉलिटिक्स में और ज्यादा एक्सप्रेसिव है ये चीजें बाकी स्टेट्स में बाद में होना स्टार्ट हुई हैं अच्छा, ये बिहार में पहले नोटिस करा आपने स्पेसिफिकली इन दिस नॉर्थ बेल्ट कि वहां पहले से ही काफी था? सरप्राइजिंग बिकॉज आप. ऑफ द काइंड ऑफ जहां पे नेता ऐसे होंगे ना तो आपको लगे आप यू आर मोटिवेटेड टू गो एंड वोट राइट 2010 में बिहार के चुनाव में विमेन वोटर टर्नआउट वाज मोर देन दैट ऑफ मेन अब पीपल कैन अस्क्राइब इट टू माइग्रेशन आउटवर्ड मेल माइग्रेशन आप जिसको भी अस्क्राइब करना चाहे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन सच्चाई तो ये है कि महिलाएं बिहार में उन 5 सालों में उन्होंने देखा कि ये नेता जो एक आए हैं वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं तो हम जाके इनको वोट दे ताकि हमारे लिए आगे भी करे नीतीश कुमार का एक वोट बैंक हमेशा रहा है अपने अपने हिज कास्ट वोट बैंक इज स्मॉल राइट उसके बियॉन्ड वो इतने चुनाव इतने कैसे जीत पाए हैं विद सो मच कन्विक्शन इट्स बिकॉज ऑफ हिज स्टेडफास्ट पोजिशनिंग अमंग वुमेन वोटर्स रूही, मैं पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज समझना चाहता हूं एक बार. सो फ्रॉम अ पॉलिटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस डू यू सी दिस एज अ स्ट्रैटेजी कि हाँ यार देखो मैं तो चाहता ही हूं कि अगर एक स्टेट में मैं लड़ रहा हूं तो मैक्सिमम लोग मुझे वोट कर रहे हैं एंड आई वॉन्ट मेन तो चलो करते हैं आई वॉन्ट वुमेन टू ऑल्सो वोट और कि अच्छा चलो अगर मैं हर किसी आदमी को नहीं पकड़ पा रहा हूं आई वॉन्ट एवरी एटलीस्ट वुमेन टू वोट फॉर मी. सो फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव whatever schemes and policies they are deploying for the betterment of the women voters, is it pure strategy or is it strategy and a mix of genuine development oriented concern? What have See, I think it's a mix of both. I think it's a bit simplistic to say कि सिर्फ इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कोई बहुत ज्यादा philanthropic point of view से कर रहे हैं. It's a mix. It depends on different leaders also. Obviously, a smart, astute politician knows कि ये एक untapped vote bank था
तो जिन्होंने पहले इसको टैप कर लिया ये वोट बैंक उनका बन गया, चाहे वो एमजीआर एनटीआर की बात छोड़िए, चाहे वो जयललिता हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, या चाहे नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी हो, राइट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन सबको मिला बिकॉज दे रियलाइज कि ये अनटैप पोटेंशियल है, इसको हम अपनी तरफ लाए। बट महिलाएं ना, देखिए मूर्ख नहीं है, उनको जेन्युइन समझ में आता है कि आपके लिए आपको रियली मिल क्या रहा है, राइट। कोई क्यों पॉपुलर हो रहा है। अब फिर से मैं नीतीश कुमार का अगर एग्जाम्पल लूं, वो वो जो महिला मुख्यमंत्री बाइसिकल योजना थी वो तो वोटर के लिए नहीं थी, वो तो स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए थी, वो स्कूल गोइंग गर्ल्स तो वोटर्स नहीं थी। दे वर नॉट वोटिंग, दे वर नॉट एलिजिबल टू बी वोटर्स, राइट। ही अंडरस्टूड कि आज नहीं तो ये 10 साल बाद तो मेरी वोटर बनेंगी, और आज इनके अलावा इनकी जो मदर्स है जो देख रही है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी बेटियों की एजुकेशन के लिए क्या हमको कर रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार को वोट करें, राइट। बट ही ऑल्सो डिड इट परहैप्स बिकॉज आउट ऑफ अ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज महिलाओं के पास नहीं है, इनको मिलनी चाहिए। सो इट वॉज बोथ इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट women were deprived of, right? या अब मैंने अपनी किताब में लिखा है, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है मामा जी के नाम से, मतलब ही इज पॉपुलर अमंग ऑल वोटर्स बट मोर सो अमंग वुमेन। बट उन्होंने बोला है कि उन्होंने इसीलिए सबसे पहले महिलाओं को फोकस करना स्टार्ट किया व्हेन ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिक्स इन द स्टेट, व्हेन ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने अपने घर में देखा था भेदभाव, राइट। एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से दैट कि मैंने अपने घर में देखा है कि मेरी बहनों और मेरे बीच में किस तरह से फर्क होता था। तो मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है कि वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, एंड आई रियलाइज कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं तो मुझे ये एड्रेस करना है, करेक्ट। So there are many motivations, right? Mamta Banerjee, being a woman herself, can perhaps empathize with women more. So she has understood कि उनको क्या चाहिए, कैसे उनको मैं अपलिफ्ट भी कर सकूं और अपना वोट बैंक भी बना सकूं। आई थिंक सेम फॉर नरेंद्र मोदी, ही केम विद एन एक्सपीरियंस फ्रॉम गुजरात एंड ही रेप्लिकेटेड इट एंड एक्चुअली एक्सपेंडेड इट एट द नेशनल लेवल। बट जो कुछ चीजें उन्होंने बोली है, जैसे टॉयलेट योजना हुई, अब वो किसी ने बात नहीं की थी इसके बारे में, आज ना सब जानते हैं कि ये प्रथा है कि है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं करता था। तो वो बहुत मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने सिर्फ औरतों के बारे में सोच के किया, ऑफ कोर्स नॉट। वो समझे कि ये वोट बैंक है, मुझे चाहिए ये वोट बैंक अगर मुझे बहुत बड़ा नेता बनना है, लेकिन उसमें वो जेन्युइन कंसर्न को एड्रेस कर पाए, करेक्ट। तो वो दोनों चीजें साइड बाय साइड जाती है, तभी आपका ये मॉडल सक्सेसफुल हो पाता है। वरना तो सब लोग ही आज तो कैश, तेजस्वी यादव ने तो 30,000 रुपए का प्रॉमिस किया था, नीतीश कुमार प्रॉमिस 10,000, तेजस्वी यादव प्रॉमिस 30,000, पर महिलाएं उनकी तरफ क्यों नहीं गई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जेन्युइन कनेक्ट भी जरूरी है, और वो देखती है महिलाएं। Yeah, that's a very important point. Yeah, so it's not just the freebies जिसमें आपने एक चैप्टर पूरा डेडिकेट करा, एंड विल कम टू दैट। रूही, इसमें ऐसा भी होता है क्या कि डू वी हैव सम डेटा which says that कि in whichever state there has been a female chief minister, the overall participation or increase or welfare of the women voters has been better? ये भी मैं जानना चाहता हूं, ये कहीं देखा है हमने, कहीं ऐसा कोई ऐसा स्टार्क डेटा है हमारे पास? नो नो, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक women relationship with politicians and the popularity of politicians has so far been largely gender agnostic. Mamta Banerjee is popular among women not because she is a woman, but because she is able to connect with women. Narendra Modi is a man, but he's popular among women. Nitish Kumar is a man, but he's popular among women. Jayalalitha was popular among women not because she was a woman, but because she was able to understand what the gaps are and how to speak to women and how to address their concerns. अगर जेंडर ही एक होता तो मायावती भी एक women के बीच में फिनोमिनन होती, स्मृति ईरानी फिनोमिनन होती, प्रियंका गांधी वाड्रा फिनोमिनन होती, सुषमा स्वराज फिनोमिनन होती। बट ये बहुत सारी prominent women leaders are not known to have women vote banks as their loyal vote banks, because gender is not the point. The point is whether you're able to speak the language of women voters, connect with them, understand their needs, their aspirations, their anguish, and address them. सो कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि आप जेन्युइनली किससे फील कर पा रहे हो कि जो ये करना चाहता है चाहती है वो जेन्युइनली हमारे भले के लिए करना चाहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट कि भैया ये तो मेरे धर्म व जाति की, दो कास्ट इज अ फैक्टर एंड विल कम टू दैट, बट नॉट स्पेसिफिकली फीमेल है कि मेल है। अदरवाइज वसुंधरा राजे वुड ऑल्सो हैव हैड अ ग्रेट level of followers and female band, which I don't particularly see.
Right. हैपनिंग इन राजस्थान राइट नाउ. तो चलो ठीक है, उसमें मैं बाद में आऊंगा. मुझे आपसे और कुछ पूछना है. या वेरी इंटरेस्टिंग लाइन फ्रॉम ए बुक. या द राइज इन वुमेन्स टर्नआउट raises an enduring chicken and egg question. Did women's participation increase because political parties began to court them as stakeholders? Or did their growing participation prompt parties to woo them in return? और इसी में मैं थोड़ा सा एक इंदिरा गांधी का भी एंगल जानना चाहता हूं. द assassination of Indira Gandhi. Was that a trigger point that eventually led to a massive level of participation? Let's unravel this. Right. So, I have actually divided the evolution of women voters in four phases, and wo entirely based on my understanding and my reading of this process is. मुझे कुछ academics ने बोला है कि चार क्यों, तीन क्यों नहीं, दो क्यों नहीं. अब वो तो देखिए 10 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी जो understanding है मैंने उस बेसिस पे किया है और उसमें 84 the assassination the election that followed the assassination of Indira Gandhi is a major turning point. उसके पहले मैं ये बोलूंगी कि as in herself इंदिरा गांधी का खुद का फोकस कभी women voters नहीं थी. क्योंकि उस टाइम बहुत और कंपल्शंस थे, राइट. उस टाइम देश का माहौल बहुत अलग था. उनका जैसे बहुत बड़ा फोकस था गरीबी हटाओ. सो अनएम्प्लॉयमेंट, द एंग्री यंग मैन इन द 70s वाज अ बिग थिंग, राइट. तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स, गरीबी, ये सब उनका फोकस था. महिलाएं एज अ टारगेट ग्रुप शी हैड नॉट एड्रेस्ड on her own as such. But 84, when she was assassinated, and the election that happened, we see that the gender gap in the turnout of men and women falls to a very low from it remained in the range of 10 to 11, 12%. It falls to just 2.6%, which means women turned out in large numbers to vote, whether it was as a sympathy for a chief minister. And women are more emotional sometimes, right? In more not emotional in that sense, but in terms of relating to incidents. So whether it was as a sympathy factor for Indira Gandhi being assassinated, and anger against the assassination of Indira Gandhi, who was such a popular mass leader, or was it as a show of solidarity for Rajiv Gandhi, who was a son who was standing for the election, whose mother had just been brutally assassinated? Whatever the reason was, women turned out in large numbers. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस समय, even if subconsciously, at least the smart politicians, the political class understood that ये vote bank है. क्योंकि जिस तरह का मैंडेट कांग्रेस को उस चुनाव में मिला, वो अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट है, राइट. द काइंड ऑफ नंबर्स द कांग्रेस केम टू पावर विद, इट्स अ मैसिव मैंडेट. एंड समवेयर डाउन द लाइन politicians realize that women have had a role to play in this mandate. And that became the beginning, I feel, of the understanding of the role and the importance of this bloc as a voting bloc. उसके बाद, of course, 80s में फिर मंडल मंदिर politics became dominant. 90s में, but somewhere down the line things started happening, which is why in the early 90s we see these two constitutional amendments, right, where women were given reservation in urban local bodies plus panchayats. Self-help movement became important. Small things like pension, widow pension was started. So बहुत सी ऐसी चीजें होने लगी जो हमको उस टाइम नहीं रियलाइज हुआ कि इनका कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, बट they had an impact on the empowerment, political and electoral empowerment of women from the grassroots level over time. And those measures were also taken because somewhere down the line the political and policy making class realized कि ये untapped भी है और ये ignored भी है, तो इनको जरूरी है address किया जाए. And that somewhere down the line started this whole story where women were given more importance. Now why I say it's a chicken and egg problem is because there is no specific way to know कि आज महिलाएं इसीलिए ज्यादा सशक्त हैं, इसीलिए ज्यादा प्रोमिनेंट है इलेक्टोरली क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली ट्राइंग टू वू देम, और आर पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइंग टू वू देम बिकॉज वुमेन हैव स्टार्टेड कमिंग आउट इन लार्जर नंबर्स टू वोट. तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही चलती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि किसकी वजह से क्या हुआ है. It's not it's not a science, right? It's Yeah. more of it's more of a trend. It's more of a pattern, right? Which it's very difficult to demarcate. But these two things simultaneously have happened, which have
ensured that we are where we are and that we are writing a book on women voters? आपकी किताब में ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, राइट? रूही, एक चीज मैं अनपैक करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन नहीं करते, पीपल फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल, बट आई वांट टू एड्रेस दिस थिंग, राइट? धर्म पे आते हैं एक बार। आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण हिंदू फैमिली, ठीक है? हाफ गुजराती, यूपी, तो अच्छा इकोसिस्टम है। एवरीबडी सपोर्ट्स इन माई फैमिली, दे सपोर्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है? आई रिमेंबर मैं इनसे किसी चीज के बारे में बात कर रहा था एक बार। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, माय मासीज, एंड दे वर ऑल सिटिंग इन अ हॉल, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट चाइना इज डूइंग, ओके, in terms of development, in terms of infra, in terms of technology, AI, everything. Because I come from tech background, मेरी उस तरफ ही इंक्लिनेशन है। मैं इनको बोलता हूं यार, आईटीआर भरने जाता हूं टूटी सड़कों पे, और उन्हीं टूटी सड़कों से आईटीआर भर के मैं वापस आता हूं। आपकी हवा खराब है, आपका पानी खराब है, XYZ XYZ XYZ। मुझे एक ही काउंटर मिलता है हमेशा। मैं अभी चलो अपने फादर्स उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मदर्स या मासीज हु आर ऑल टीचर्स, हाईली एजुकेटेड, राइट? यू नो व्हाट काउंटर आई गेट? कि राघव, तुम जानते नहीं हो कि यह सरकार कितना ज्यादा हिंदुओं के लिए कर रही है। एंड आई एम लाइक कि मैं जो चीजें उठा रहा था उसका तो धर्म से कुछ लेना देना नहीं था, बट जो मुझको एक डिफेंस मिला दूसरी पार्टी से, द फीमेल पार्टी से जो डिफेंस मिला, दैट व्हाई दे बिलीव दैट वी आर स्टिल अंडर द बेस्ट गवर्नेंस इज बिकॉज ऑफ रिलीजन। एंड देन आई टोल्ड माय मासी, यार आप तो फिजिक्स की टीचर हो ना, तो वेयर इज दिस एंगल कमिंग फ्रॉम? आज भी बहुत लोगों के डिफेंस में, जैसे खास अगर नॉट जस्ट द फीमेल वोटर्स, वाई इज रिलीजन एंड दैट, कि हमारा धर्म सिक्योर रहे, कि हमारा धर्म आगे बढ़ना चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? जब आप इंटरेक्ट करते हैं फीमेल वोटर से, क्या फीमेल वोटर्स का भी ये एंगल रहता है, धर्म वाला, जाति वाला, कास्ट वाला? इज व्हाट आई वांट टू। देखिए, फीमेल वोटर्स इस इकोसिस्टम में है, दे आर नॉट वोटिंग इन साइलोज, राइट? वो तो so anything that's happening around them or the kind of society we are living in impacts them equally. And religion and caste are two big identities which we live with from birth to death, which don't change, which are very political and very electorally strong factors in our country, fortunately, unfortunately. आप इसको जैसे भी देखना चाहे, आप clinically भी इसको देखें। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि उसमें ना बहुत नुआंसेस है, और ये इतना इजी नहीं है कि सारी महिलाएं रिलीजन को देख के वोट कर रही है या रिलीजन को छोड़ के वोट कर रही है, या कास्ट को देख के या कास्ट को छोड़ के। बट आई as compared to men, I will say women are showing greater propensity to move away from these factors if they feel as women, as a gender, they benefit in a certain direction, right? So they are able to keep gender as an important identity. However, that is not true in case of situations where your other identities are more vulnerable. See, what I mean is, as why are women a block? Because चाहे उनके बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, चाहे कास्ट का हो या रिलीजन का हो, रीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक कॉमन फैक्टर है, इन ऑल अदर आइडेंटिटीज women have been second to men, right? Whether you're a Hindu upper caste woman, whether you're a Muslim woman, whether you're a northeastern woman, wherever, whichever part of the country, whichever, so unless, I mean, I'm not talking about some specific matrilineal societies, but largely across all identities, women have been second. चाहे आप कितने भी ऊंचे कास्ट से हो, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से हो, आप हमेशा सेकंड रही हैं। तो वो एक कॉमन फैक्टर है among all women. That is one common bonding factor which makes women one voter base. However, for a Hindu upper caste woman, that is her only vulnerability, right? She has the privilege of being from the majority religion. She has the privilege of being from the upper caste. But for a Muslim woman today, particularly today, her bigger vulnerability perhaps is being Muslim, because we know how this country is. We know the kind of polarizing conversations we are having. We know the kind of dog whistling, communal dog whistling that's happening.
and how, not just today, overall minorities are minorities and they have been treated like minorities. So she knows कि मेरे, for her being a woman and being a Muslim woman is a double whammy. She has two big disadvantages. Similarly for a Dalit woman, right, as compared to a Brahmin woman. So ये इतने easy, set in stone, easy to define differences नहीं है. ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, where there are identities that merge, there are identities that contradict each other. But अगर मैं ऑन एन एवरेज सिंपल टर्म्स में कहना चाहूंगी, मैं ये कहूंगी कि women are showing greater ability to move away from caste and religion, if they feel they are benefiting as women, unless their caste or religion is their bigger disadvantage, right? And why do I say the first thing that I said? It's because women are, अगर आपको दिख रहा है कि मुझे यहाँ फायदा हो रहा है, women are far more, see, women have to live in this society, correct? They know that they have not had the privilege, so if they are getting something that is giving them some dignity, they want that and they want to become far more equal. They want to get that kind of privilege. Men on the other hand have always lived with privilege, तो उनके पास बिल्कुल लग्जरी है कि वो बहुत देश विदेश की बातें करें और धर्म और जाति की और नेशनल सिक्योरिटी, पेट्रियोटिज्म, इन सब चीजों की बात करें. बट वुमेन हैव नॉट हैड दैट लग्जरी, क्योंकि उनके डे टू डे कंडीशंस में उनको अपनी डे टू डे लिविंग से ही इतना स्ट्रगल करना पड़ता है. So they would rather address their day-to-day problems than talk about these esoteric issues, which men tend to talk about and have the luxury to talk about more. And where women, if your day-to-day issues, your bread and butter issues are being addressed, then women are going to shift in that direction. Again, I will tell you, I will come back to Bihar because it's a beautiful example when you talk of caste. इससे ज्यादा कास्ट रिडन शायद इलेक्शन कहीं होता नहीं है बिहार में. इन्फेमस यूपी से भी ज्यादा है, कई, मतलब इंडिया में हर जगह कास्ट बेस्ड इलेक्शन है, बट बिहार में सबसे ज्यादा माना जाता है. लेकिन नीतीश कुमार के जो विमेन सपोर्ट बेस है, दैट्स क्रॉस कटिंग. वो सिर्फ कुर्मी महिलाएं तो उनको वोट नहीं दे रही हैं, सिर्फ ईबीसी महिलाएं तो उनको वोट नहीं दे रही हैं, सिर्फ उनके वोट से तो नहीं इतने भारी मात्रा में उनको वोट मिल सकते हैं. उनका जो क्रॉस कटिंग कंस्टिट्यूएंसी बन गई है महिलाएं, वो हमको दिखाता है कि किस तरह से women are able to put aside caste and these factors to come together and vote for a leader who they think is addressing them, and then they're able to keep gender as their primary identity. So it's one example, but it does show us how there is that possibility that women are showing. Beautiful, because in your book, this is what was one thing that caught my eye. आपने इस बुक में लिखा है, जैसे I'll quote, the second difference lies in how men and women define their primary use of concern. Women voters are more likely to think of their family and especially their children. Men, on the other hand, tend to focus largely on themselves or raise larger questions of community, caste, religion, and nation. So it's like कि आप एक, men are looking at the bigger picture, dharm, jati, and women are really working on the grassroots level. They want their basic survival mechanism to be sound. And I think जब तक वो survival mechanism sound नहीं होगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे in terms of your needs? So I feel, and correct me if you feel I'm wrong, AI की बात और टेक्नोलॉजी की बात तो तब आएगी ना जब एक बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म इज साउंड. डज दिस मेक सेंस? कि मुझे लगे कि भाई ना तो मेरी एग्जिस्टेंस को, ना मेरे बच्चों की एग्जिस्टेंस को, ना मेरे परिवार की एग्जिस्टेंस को, ना मेरे धर्म की एग्जिस्टेंस को कोई खतरा है, उसके बाद ही तो मैं उठ पाऊंगी कि और आप देखते हैं कि मेरे को क्या चाहिए. So this is where we come back to what we were discussing earlier, right? जब आपने पूछा कि women centric policies क्यों चाहिए, women centric अलग से क्यों, why should they be a target group? It's because, as you've rightly mentioned now, that it's because they don't have those basic everyday benefits and privileges that men have, which is why you need to address them separately. And that's why, and जो family वाला point है, वो एक थोड़ा सा उस point पे मैं elaborate करना चाहूंगी कि वो मैंने इसलिए भी लिखा क्योंकि I think women are conditioned. We have been conditioned forever to believe कि भाई आपके लिए आपका परिवार सबसे ज्यादा important है, right? मैं इस चीज को रोमांटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं इस चीज को बहुत क्लिनिकली देख रही हूँ. आई एम नॉट इवन सेइंग इट्स नेगेटिव, बट आई थिंक वी एज अ सोसाइटी हैव टोल्ड women not to look at themselves as individuals, to look at themselves as part of a family, and that the family is very important, which is why when you go to a woman voter, she says बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की नौकरी,
पति की नौकरी है, men will never talk about that. Men are always talking about कि मुझे ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमारे घर में ये, मेरे पास पानी नहीं आया, ये सड़क नहीं आई, ये नहीं मिला, देखो मोदी जी ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया. They are not talking about their family in a large context. Why women are talking about it? Unfortunately, our conditioning is that, and also like our policy making is also like that. We have a women and child development ministry. भाई क्यों? विमेन को चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ क्यों क्लब करना है? क्या मर्दों का जॉब नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट? क्या उनका कंसर्न नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट? ये विमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों है? So somewhere down the line, policy making has also been very patriarchal and from a very patriarchal perspective. And उस वजह से also women are conditioned to believe कि हम अपने परिवार के बारे में पहले सोचें, हम अपने बारे में, अकेले के बारे में कैसे सोच सकते हैं सिर्फ. आई हैव अ सन, ओके. मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं, मैं उसकी स्कूल की फीस दे सकता हूं, मैं उसके साथ लेगोस खेल सकता हूं. मुझे उसको नर्चर करना नहीं आता है, मुझे आता ही नहीं है. तो कभी कभी मैं भी ये सोचता हूं, द वे आई सी माई वाइफ डूइंग थिंग्स फॉर हिम, केयरिंग फ्रॉम हिम, मुझे पता है ये तो मेरे को, एक तो शायद वो भाव, मतलब वैसा एक वो वैसा नहीं आता है मेरे अंदर से. और मुझे लगता है कि मेन डोंट हैव द स्किल्स. अब ये चाहे बायोलॉजिकल मेकअप है, ये चाहे अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमको तो हमारी माओ ने बड़ा करा है. आवर फादर्स डिडंट ब्रिंग अस अप, वी वर ब्रॉट बाय आवर मदर्स, right? Mothers who were also working. My mom's a teacher. She was always working. She was fairly independent, and yet she was able to hold the family together. Very seldom I have seen men holding families together. I've seen men being authoritative. मेरे जो फ्रेंड्स हरियाणा बेल्ट के हैं, वो अपने फादर्स के पास बैठ नहीं सकते. वो खौफ है. They are not holding it together. It's fear. I think the ladies have held it together, and I have seen so many great examples of females who have beautifully, पूरी extended family को भी उन्होंने effortlessly, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको किसी ने बोला, effortlessly उन्होंने बांध के रखा है. And yet they were politicians. I have in my family who are MLAs, and the way they keep their houses intact because वो skill है उनको लोगों से जोड़ने की. तो ये मैं एक बार कभी कभी आई थिंक अबाउट इट, इज इट रॉन्ग इफ मेन ऑल्सो थिंक दैट यार इन टूडेज टाइम आई सी द फैमिली स्ट्रक्चर गेटिंग completely destroyed, right? And somewhere I would want the woman of the house to take her natural role to also take care of the family. Also, I'm not saying only take care of the family, but also take care of the family. क्योंकि आजकल ये टॉपिक्स बहुत पोलराइजिंग हो गए हैं. मुझे इसमें एक बैलेंस व्यू नहीं मिलता है, मुझे सिर्फ ऑपोजिंग व्यूज मिलते हैं. एंड व्हाई दिस डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज यू राइटली सेड, फिर पॉलिसीज भी वैसे ही बनेंगी. अगर क्लैरिटी नहीं है कि इसको नेविगेट कैसे करना है, पॉलिसीज वुड बी कंफ्यूजिंग. तो आपका क्या टेक है इफ समबडी इज एक्सपेक्टिंग, या अगर मैं सोचूं कि हाँ यार, I'll say it very bluntly, okay? Let's say I'm looking for a wife who knows how to handle the family and also be independent in whatever she's trying to pursue. Is my thinking regressive is what I want to ask. Most certainly आपको मुझसे भी अग्रेसिव अपोजिंग व्यू ही मिलेगा. इट्स सर्टेनली रिग्रेसिव. इसमें देखिए ये कोई रोमांटिसाइज करने वाली या ग्लैमराइज करने वाली बात नहीं है कि महिला सब कुछ बैलेंस कर लेती है, फैमिली को भी संभाल के रखती है, घर को भी संभालती है, काम भी करती है. ये शर्म की बात है कि सारा बोझ एक महिला पे आता है. और आज की तारीख में भी हम ऐसा सोचते हैं. इस तरह की फैमिलीज एग्जिस्ट बिल्कुल करती हैं, लार्जली ऐसी ही फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं. ये it's shameful that a woman is romanticized for being sacrificial, for being so devoted to her family while managing the outside world. इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है. ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है कि हम इस तरह की सोसाइटी में जीते हैं. दोनों मर्द और महिला का इक्वल रोल है और बायोलॉजिकल मेकअप से इसका कोई लेना देना नहीं है. बायोलॉजिकली वी आर नॉट मेड to be be sacrificing or to be whatever. ऐसा नहीं है. This is all social conditioning. This is how we have been conditioned. Our societies have expected us to behave. And because of that expectation, women generation after generation have been behaving like that. And men have been thinking, now men think कि देखो
I'm so liberal. I tell my wife that she should be independent. She should go work. But yes, घर संभालना भी उसका काम है. But वो liberal thinking नहीं है. वो बहुत regressive thinking है कि आपको ऐसा एक पहली बात तो आपको किसने राइट दिया ये सोचने का कि औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं. वो अपना रोल खुद डिफाइन करेंगी. आप क्यों डिफाइन करेंगे किसी महिला का रोल? वो अपना रोल खुद डिफाइन करेंगी. वो अपनी पोजीशन खुद डिफाइन करेंगी. अपनी प्रायोरिटीज, अपनी एबिलिटीज, अपना कैपेबिलिटीज, वो क्या संभाल सकती हैं क्या नहीं, वो खुद डिफाइन करेंगी. आपका जॉब नहीं है ये डिफाइन करना, राइट? सो ये जो एक अनइक्वल लेंस है हमारी कि भाई women कैन कीप फैमिलीज टुगेदर और women कैन ब्रिंग अप चिल्ड्रन बेटर, ये बहुत ही एक दकियानूसी सोच है जो कि टाइम आ गया है कि हम इसको पीछे छोड़ के आगे निकलें. और ये रूही मैं वही कह रहा हूं ना, इतना ज्यादा सीप्ड इन है ये. I'll give you another example and thank you for specifically pointing out by saying कि इसमें बायोलॉजिकल मेकअप को एज अ फैक्टर मत लेके आओ, क्योंकि दिस इज हाउ वी डिफेंड. तो आई एम सेइंग इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी आर इवन टॉकिंग अबाउट इट, you know, despite the kind of progress we think we've done or the kind of liberal environment that we think we interact with. Yeah, no, it is deeply rooted. It is deeply rooted. और मुझे नहीं पता ये कैसे जाएगा. No idea. We are all educated people, men, right? फिर भी ये deeply rooted है. I don't know. I don't know how it's gonna go away. I think only time will tell. And that's why I think it is unfortunate. Really. Correct. नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रूही, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो ये बात बोली ना कि पॉलिसीज वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों है, तब मुझे क्लिक करा कि यू आर सो राइट. क्योंकि फिर तो पॉलिसीज ही ऐसे बनेंगी ना. पॉलिसीज बनाने वाले भी तो एलियंस थोड़ना है. दे आर पीपल फ्रॉम दिस ज्योग्राफी. इफ मेन लाइक मी स्टिल ऑल्सो टिल टुडे इफ आई एम एस्पायरिंग फॉर अ पार्टनर लाइक दैट एंड आई कॉल माई सेल्फ एजुकेटेड, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी फंडामेंटल्स गलत है ना. और मेरे जैसे कितने लोग हैं ऐसे जो आगे एक एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट है. अगर फिर भी मैं आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं तो यू आर राइट, देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड आई थिंक वी मेन शुड थिंक अबाउट इट. एक बार सोचो एक्सपेक्ट करने से पहले. रूही मैं एक फ्रीबीज वाले पे आने वाला हूं. वो फ्रीबीज वाला चैप्टर मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लगा. तो मुझे ये फ्रीबीज वाला समझाइए कि यस इनिशियली फ्रीबीज भी बांटी गई थी, बट आई वॉन्ट टू ऑल्सो नो दैट हाउ हैज द वुमेन वोटर्स मूव्ड ऑन फ्रॉम द फ्रीबीज एंड वाई स्टार्टिंग विद द फ्रीबीज वॉज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग. इट इज नॉट बाइंग द वोट्स बट मे बी टू गेट देम टू पार्टिसिपेट इन द इकोसिस्टम. तो मेरे लिए वो चैप्टर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग था. मेरे को बहुत चीजें मेरे दिमाग में आई जो मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया था. सो प्लीज एक्सप्लेन दिस इंटायर फ्रीबीज इकोसिस्टम. What is the current situation, and if you want to name certain schemes or people or politician leaders who were the trailblazers of this thing, so I would want clarification on this. Right. देखिए, I think first of all we tend to confuse what you call freebies, I call say welfare delivery with bribes, right? जो इलेक्शन से पहले आपको अगर कोई पैसे दे रहा है या अल्कोहल दे रहा है या आपको कुछ खाने पीने का दे रहा है, वो ब्राइब है. पॉलिसी तौर पे अगर आप एक कॉन्क्रीट सब्सटैंटिव स्कीम विच इज अ वेलफेयर डिलीवरी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो एक पॉलिसी डिसीजन है. आप उसको ब्राइब के तौर पे महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें. अब मैं इसका एक सिंपल आपको एग्जांपल दूंगी, जो मैंने अभी भी आपको दिया एक्चुअली थोड़ी देर पहले, कि बिहार में एक बोली लग रही थी लिटरली ना. नीतीश कुमार ने बोला 10,000, तेजस्वी यादव ने बोला 30,000. तो महिलाएं क्यों नहीं गई तेजस्वी की तरफ? क्यों उस ऑक्शन में दे डिडंट टेक द हायर बिडर, राइट? दे वेंट टुवर्ड्स नीतीश कुमार बिकॉज there was a relationship of trust and there was a relationship of understanding कि भाई ये हमें देंगे और इससे हम कुछ कर पाएंगे. ये बोलने की बात नहीं है सिर्फ, right? So women as voters are not looking at freebies only as something जो उनको घर बैठे फ्री मिल रहा है. अब आप घर में बैठ के मुफ्त की आप खाना खाओ, आप खुशी से रहो. वैसा बिल्कुल नहीं देखती हैं महिलाएं. बिकॉज उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए जरूरी है सब्सटैंटिव सस्टेनेबल अपलिफ्टमेंट, राइट? और जहां उनको वो दिख रहा है, चाहे वो उनको इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीबी मिल रहा है, दैट इज व्हाट देयर अप्रिशिएटिंग. सिंपल सी चीज है, उज्ज्वला गैस जैसे कि अब वो आपको मिल रही है फ्री में. इसका मतलब थोड़ी कि आप घर में बैठ के बिरयानी बना के खाने के लिए उसको फ्री में ले रहे हैं. आप इसलिए ले रहे हैं और इसीलिए जो आपको दे रहा है उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं था. आप your health was suffering, your your convenience was suffering because you were walking for miles to get firewood to to light your chulha. Now you're getting a gas cylinder. या कैश ट्रांसफर की जहां हम बात करते हैं, ये इतना सिंपलिस्टिक व्यू
होता है जब लोग कहते हैं कि अरे ये तो ब्राइब है और उस वजह से वो जीत गए। कैश ट्रांसफर क्यों इंपॉर्टेंट है विमेन के लिए आज की तारीख में, या क्यों इंपॉर्टेंट रहा है पिछले कुछ सालों में? क्योंकि उनके पास वो डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं थी। दे डिडंट हैव द मनी दैट दे नीडेड to exert themselves in the household and to spend on their nutrition or their children's nutrition and spend the day the way they would like to, right? This gave them economic agency, and most women across India that I have met, उस कैश ट्रांसफर को लेके लोग बिल्ड ही कर रहे हैं। कोई एक वेजिटेबल वेंडिंग शॉप खोल रहा है, किसी ने Hmm. ब्यूटी पार्लर खोला है, किसी ने टेलरिंग बुटीक खोला है, किसी ने स्मॉल स्नैक का चाय का स्टॉल खोला है। मोस्ट वुमेन आर यूजिंग दीज कैश ट्रांसफर्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड्स फॉर देमसेल्व्स। दे आर नॉट यूजिंग दीज कैश ट्रांसफर्स कि भाई हमको फ्री में मिल गया तो हम कमल में जाके बटन दबाएंगे, या हम हाथ को जाके बटन दबाएंगे, या हम फूल को देंगे, झाड़ू को देंगे, Hmm. जिसको Hmm. देंगे। Hmm. आपको ये मिल रहा है, आपका इससे क्या लाभ हो रहा है, एंड हाउ इज इट substantively tangibly improving your life? That is important. So which is why I urge people not to look at freebies in a very simplistic form कि भाई Yeah. freebie है तो महिला उसके लिए वोट कर रही है। जो मिक्सर ग्राइंडर था, जो जयललिता वाज इन्फेमस फॉर मिक्सर ग्राइंडर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, कि उन्होंने मिक्सी दे दी तो महिलाओं ने उनके लिए वोट कर लिया। अरे क्यों इंपॉर्टेंट था फॉर वुमेन? Hmm. क्योंकि वो किचन में घंटों घंटों लगाती थी यूजिंग ग्राइंडिंग मसालास, ग्राइंडिंग वट एवर। उनको इतना एफर्ट लगता था, उतना उनको उनका उनका टाइम आ जाता था जस्ट डूइंग दैट, राइट? जब उनको मिक्सी मिली, इट मेड द लाइफ इजी। इट वॉजन कि हमको फ्री मिक्सी मिल गया हम बहुत खुश है। इट मेड their lives easier. It reduced their time in the kitchen. It gave them time to rest. It gave them time to do something else. It reduced their effort, which is why they appreciated it. आज की तारीख में तो कोई भी महिला जाके तमिलनाडु में मिक्सी के ऊपर वोट नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आ गई थी। अब उनकी दे मूव्ड ऑन। Yeah. नाउ दे नीड द नेक्स्ट बेटर थिंग, राइट? सो विच इज वाई टुडे फ्री पब्लिc transport, for instance, in by the DMK government is important, because that gives them the mobility to go and work and to go and study. So women are going to move on from cash transfers also. At this point, cash transfers are important, but the next question they will ask is livelihood. Yeah. रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैं ये जरूर कहूंगी कि महिलाएं दे नेवर रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। आप देखिए, नरेगा का मैंने पहले उदाहरण लिया था। नरेगा में 33% जो आरक्षण है वो है महिलाओं के लिए। उसमें इवेंचुअली 33% तो हर साल ही मीट हुआ है। इवेंचुअली ओवर 50% ऑफ द नरेगा वर्कफोर्स वाज वुमेन। व्हाट डज इट टेल अस? इट टेल्स अस दैट वुमेन वांट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। Yeah. नरेगा आसान काम नहीं है। उसका मजाक बनता है कि कुएं पे कुआं आप खोदे जा रहे हो, बट इट्स नॉट इजी। आप गर्मी में, आप बारिश में, आप ठंड में आप काम कर रहे हैं। फिजिकल लेबर है वो। जिन्होंने ग्राउंड पे नरेगा कवर किया, दे नो व्हाट द काइंड ऑफ फिजिकल लेबर इट Yeah. इन्वॉल्व्स, फिर women were still choosing to do it. It's not about getting something free, that was hard work. They were getting money in exchange of doing something, Yeah. which means that they are not averse to working hard if it gives them something to improve their lives. Which is why I say freebies are a very oversimplified, less understood aspect of elections and women voters. We often think of it as kuch dole de diya hai unko, and it's just a handout. It's not seen by women voters as a handout. Of course, there are exceptions. I am not saying it's a rule. I'm just saying that the larger thinking is that they are getting something through which they can improve their lives. Yeah. And as long as that is happening, they will support you. But tomorrow, they will also say कि हो गया, अब कितना कैश ट्रांसफर करोगे? अब हमको Yeah. सॉलिड रोजगार दो, हमको लोन्स दो to start jobs, give us entrepreneurship opportunities, which is why all these Lakpati Didi etc. the BJP government has already started talking about, right? क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट सवाल ये होने वाला है कि हमको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और बहुत सारे ये कैश ट्रांसफर्स आर कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, बाय द वे। लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, Yeah. बट दे आर कंडीशनल टू कैश ट्रांसफर्स। जैसे चाहे लाडली लक्ष्मी लाडली बहना टाइप की योजनाएं हो, या लक्ष्मी भंडार हो वेस्ट बंगाल का, वो इसीलिए भी दिया जाता है ताकि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होती है, फीटिसाइड होती है, या फिर होता है कि आप बच्चों को पढ़ाएं नहीं, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट ना करें, उन सबको डिस्करेज करने के लिए कि आपको जब आपकी बच्ची क्लास 10 में होगी इतना पैसा उसको मिलेगा, उसके बाद जब वो क्लास 12 पास कर लेगी तो इतना पैसा मिलेगा। दे आर कंडीशनल टू एनकरेज फैमिलीज एंड सोसाइटीज to not look at women as a bane and as a curse, but to look at them as equals कि भाई कोई है जो इनके लिए करेगा तो हम पढ़ने देते हैं उनको।
उसकी शादी में आपको तभी मिलेगा इतना पैसा जब उसने उतनी इतने साल के बाद उसकी शादी होगी, which means you will wait for the woman to turn 18 before she gets married if you want that money, right? So a lot of these cash transfers are also intelligently designed to correct social misgiving, social vulnerabilities and discrimination. Yeah, because it is very easy to dismiss as a citizen anything that the government does, specifically if that is a government that you do not like. आज के टाइम पे हम इतना एंटी गवर्नमेंट पे हैं, कल को वो ये भी बोलेंगे ना कि देखियो पानी इज लिक्विड, मैं बोलूंगा पागल है ये. That's how the state of things are. And as a common man, when we look at these schemes, I'm like कि बिना सोचे समझे इन्होंने निकाल दिया. That's why it's very important for people to understand that these are all mindless. And जो आप बोल रहे हैं, it reminded me of the Maslow's hierarchy needs, कि it starts with the basic, कि एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स क्या होती है, and it ends up in self actualization. देयर आर स्टेजेस. तो आप सही बोल रहे हो कि भाई अच्छा फ्री भी मिल गया, चलो मेरे को मिक्सर ग्राइंडर मिल गया, मैंने कोकोनट की चटनी अब मैं आराम से बना देती हूं, ब्रेकफास्ट हो गया सबका भैया. अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज एम्प्लॉयमेंट, विच इज फाइनेंशियल फ्रीडम. डू यू ऑल्सो बिलीव, रूही, that financial freedom and employment, the more you see women and female in this nation becoming more financially independent and free, the overall schemes that the government deploys and the ask will also increase in terms of quality and in terms of actual growth of any nation. Naturally, as you move up the ladder, as you move up the food chain, your expectations and your aspirations change, right? And the job of political parties and policymakers is to keep pace with these aspirations and expectations. So as women become more economically independent, as they move up the food chain in that sense, their aspirations and expectations will also change. वो हमेशा ही तो 2,000 रुपए पर मंथ के लिए नहीं वोट करेंगी, उनको लगेगा नेक्स्ट कि भाई अब हमको आगे तो कुछ मिलना चाहिए. So these are all phases, and this is like a ladder, right? It has to keep moving up. But the good thing is that we've started talking about it, and we've made, there is a foundation that has been laid. Ab dekhiye, as I said, itni choti si cheez that you didn't have a toilet in your house in the village. Women had to, वो इतनी छोटी चीज है, आज भी बहुत महिलाओं के पास नहीं है. मैं नहीं कह रही हूँ कि स्कीम ने सबको दे दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ. I'm not, but I'm saying the thinking has to, we are starting so low, our base is so low, कि इसीलिए आपको कैश ट्रांसफर वगैरह के बारे में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी. दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर इवन वन मेडिसिन, राइट? तो वो एड्रेस करना जरूरी था, वो एड्रेस करना जरूरी है. आई एम नॉट, इट मे बी बैड इकोनॉमिक्स, you might look at it as bad economics if you're an economist or if you're a certain economist of a certain bent, but I don't necessarily believe that either, because it's a lot of women are using it in a productive way and giving things back to the local economy. So you're boosting your local economy in many ways. So it is a more complex issue than simply dismissing it as a freebie. रूही, एक चीज मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी, which I just wanted to know, जो पॉलिसीज हमारे यहाँ पर हैं towards the women voters or towards the female kind, ठीक है, मेल काइंड एंड द फीमेल काइंड, जो इंडिया ने पॉलिसीज मोर और लेस कंबाइन कर लीजिए आप, जो हमने डिप्लॉय करी हैं या जो हमने क्रिएट करी हैं, वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन टू कपल ऑफ कंट्रीज? कभी मैं सोचता हूं कि हमारी पॉलिसीज क्या इंटरनेशनल लेवल पे हैं, भले ही वो अच्छे से इंप्लीमेंट हुई हो ना हुई हो. सो आई जस्ट वांट टू नो, व्हेन इट कम्स टू इंडिया एज अ नेशन, and why I'm asking this, we have had female prime ministers. That's something to be proud of. I think US का तो अब तक female president भी नहीं हुआ है. We've had one female prime minister. One female prime minister, two presidents or one president? Two presidents. Two presidents. Yeah, and we. तो बस मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी पॉलिसीज जो इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करती आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, किसी की भी हो, उसका स्टैंडर्ड और लेवल अगर मैं कुछ कंट्रीज से कंपेयर करना चाहूँ, where do we stand? This is, it's a very wide question, Raghav. Yeah, I know. That's why I said combined. Ki mota mota it's very,
it's very difficult to give a straight answer to that because बहुत सी policies है, कुछ policies are at par with policies across the other countries, कुछ policies are better, कुछ are very very basic and simplistic. So it's not an easy answer to give. Also, our society is very different, right? So our needs are different. Different gaps need to be addressed. So all of that is extremely different. So it's very Yeah. difficult to give a straightforward answer to it. But जैसे मैं आपको बोलूंगी अब जैसे I am a big proponent of Narega, of the way Narega was designed. Implementation, execution अपनी जगह अलग होता है. Yeah. और एक बहुत अच्छा अभी एक पीस लिखा था प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में कि क्यों वो स्कीम इतनी बढ़िया स्कीम है. देयर वाज एक्चुअली नोबेल प्राइज विनिंग स्कीम अगर कहीं और देश में होती तो वो आप पढ़िएगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन कि क्यों वो स्कीम इतनी इट्स सच अ फाइन इंटेलिजेंटली डिजाइन स्कीम. एग्जीक्यूशन हमेशा हमारा लैकिंग रहता है बट दैट्स अ वर्ल्ड क्लास स्कीम एज अ डिस्ट्रेस स्कीम. अब गलती ये है अगर आप उसको एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम समझे, वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, वो सेफ्टी नेट है. इट्स अ डिस्ट्रेस मैकेनिज्म, इट्स अ डिस्ट्रेस स्कीम, इट्स अ सेफ्टी नेट. जहां तक आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो बहुत ही इट्स अ वेरी गुड सॉलिड स्कीम. सो देर आर मेनी सच स्कीम. तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. अब आपके कॉन्टेक्स्ट में ये स्कीम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना. आप वर्ल्ड से तो कंपेयर नहीं कर Yeah. सकते. अब चाहे नीतीश कुमार की बाइसिकल योजना हो, अब वो अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो आपको तो ये स्कीम Yeah. मीनिंगलेस लगेगी. बिल्कुल पर बिल्कुल. आपके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में उस स्कीम का कितना सिग्निफिकेंस था, वो क्यों इंपॉर्टेंट थी. चाहे ऐसे बहुत सी छोटी छोटी स्कीम्स हैं जो आप अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. दे मे Subjective. सीम it's very subjective depending on your social conditions, depending on your environment, depending on the kind of lived realities of your particular country. And we have to be very cognizant of the fact that we are a developing nation. Our needs, our demands are fairly different from any other, let's say, a more developed country and nation. कोई और दिखेगा कि यार तुम बाइसाइकिल देख रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा context. I think No, that's also very important. we are a developing nation. We are a very diverse nation, Yeah. right? That's the biggest challenge of our democracy. We are a very, very diverse nation. आप जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु में 10,000 फर्क बता सकते हैं. आप असम और छोड़िए, असम और राजस्थान छोड़िए, असम और वेस्ट बंगाल में 10,000 फर्क बता सकते हैं. सो द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव मेक्स आवर पॉलिसी मेकिंग दैट मच मोर डिफिकल्ट एंड दैट मीन्स दैट आवर पॉलिसी मेकिंग हैज टू बी दैट मच मोर नुआंस्ड. Rui, is it also wrong to then just blindly compare China and India? कि अरे उनको देखो वो क्या क्या कर रहे हैं because of this factor that considering that how our geography is so diverse. ज्योग्राफी की बात नहीं है. आपको चाइना थ्राइविंग डेमोक्रेसी लगती है? नहीं नहीं है. ना, पुलिस नहीं. स्टेट है. इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी. आप इंडिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते. चाहे अब देर इज अ क्रिटिसिज्म टू हाउ दिस गवर्नमेंट हैज बिकम ऑटोक्रेटिक. उनकी जो भी टेंडेंसी हो आए तो वो पीपल्स मैंडेट से है ना. वी आर स्टिल our democracy is so vibrant. It has brought down the biggest of leaders. Indira Gandhi lost an election after emergency. She was the biggest leader of her time. Narendra Modi came down from a 300 plus figure to just 240, right? Biggest of politicians lose elections, and the complete unknown wins. Arvind Kejriwal जीते ना चुनाव, वो कोई नहीं थे. क्या थी आम आदमी पार्टी, but जीते because people's mandate is what, and that's why I'm very optimistic about our country, because I feel our democracy is intact in what matters the most, which is elections. आप वोट दे रहे हैं और लोग जीत रहे हैं. आप वोट नहीं दे रहे हैं तो लोग हार रहे हैं. वो चीज चाइना में तो नहीं है. चाइना इज नॉट अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी. आप बोल ही नहीं सकते ये बात. तो naturally you can't compare. If you want your country to become like China, then it's a different thing, na? Then that's very undesirable. So you are saying that we being a democratic nation is one of the biggest strengths that we have. 100%. It is the biggest strength that we have. It is the biggest strength. आप डिक्टेटोरियल टेंडेंसी आपकी तब होगी जब आप पावर में होंगे. लेकिन अगर लोगों को लगेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा हो रहे, अगले इलेक्शन में आपको हटा दिया जाएगा. हुआ ना इंदिरा गांधी के साथ. वो बनी डिक्टेटर के she took a dictatorial form during the emergency. She lost the next election, right? So even the biggest of politicians will be held accountable when it comes to voting. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिकॉज ये बहुत उठता है. हम तो डेली चाइना को ही देखते रहते हैं. अगेन एज अ सेड कमिंग फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, इट टू सॉरी फॉर माय वर्ड, इट रियली पिसेस मी ऑफ कि द वे दे हैव डन डेवलपमेंट्स इन एआई एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस. चलो स्पेस में तो हमने भी करा है, बाकी चीजों में
आई एम लाइक कि यार ये, आई मीन इट्स नॉट एज इफ वी डोंट हैव द ब्रेन पावर, एंड फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? हम नेताओं को और गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं कि यार इनकी ही बकवास पॉलिसीज है जो ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वी आर सफरिंग, एंड देन ऑब्वियसली पीपल कम डाउन टू द एयर क्वालिटी एंड एवरीथिंग. रूही, आई वुड वांट टू एंड with one very important thing in the concluding chapter of your book. Beautiful. I mean, it's a great conclusion. So very loosely, I would want you to touch upon, talk us about the three notable trends that you have seen in what women want in India. कि Yes. देखिए देखिए कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड है. पहली बात ये नहीं है कि आर women more important as voters than men. What is important is that today they are being seen as equally important, right? And that is that equality that we have been striving to achieve, correct? That's a very important thing. Having said that, why are women voters different today as the question is not whether they're different from men, the question is how are they different from themselves earlier. One is today they are expressing themselves, and their expression is not of indifference. It's not like कि चलो किसी को वोट दे देंगे, जो देखा जाएगा, जो बोलेंगे. Today, if they are angry with you, they are expressing that anger and they will punish you by not voting for you. If they are happy with what you have done for them, they will reward you by going and voting for you. So the expression of political and electoral intent is passionate, is decisive, unlike earlier when it was more of ambivalence and indifference, right? Then also women are voting more independently, and these are not necessarily what I'm saying from the concluding chapter. I'm just Yeah. generally saying Yeah. women are voting more independently as compared to what they were doing earlier, which is also very important because just going and voting and आपके नंबर बढ़ रहे हैं सिर्फ वो important नहीं है. Important ये है कि आप सोच के वोट दे रहे हैं, अपनी एजेंसी यूज करके वोट दे रहे हैं. और मुझे बहुत सी ऐसी महिलाएं मिली हैं जो बोलती हैं, जिन्होंने बोला है मुझे कि हमको घर पे बोलते हैं कि इनको वोट दो, हमारे पति Yeah. बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें पता है ना कि वहां जाके हम किसको वोट दे रहे हैं, और वहां जाके हमको पता है कि किसी को पता नहीं लगेगा हम किसको वोट दे रहे हैं, तो हम अपना यूज करते हैं. तो most women today say they vote independently. Now, whether all of them are actually doing it or just saying it, that's different. But the fact that they think they should say it is so important because they realize the importance of voting independently. वो जानती है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम किसी और की सोच के वोट दे रहे हैं. तो that's a change in mindset, right? They are saying that they are voting independently because they realize that's a good thing to do. And which is why they are claiming to do it, right? So वो एक बहुत important चीज है that there is a difference in how they are voting. Third, women are now they're not now they know the demarcation between various tiers of government. अब वो लोकल इलेक्शंस में अलग तरीके से वोट देती हैं, स्टेट इलेक्शंस में अलग तरीके से देती हैं, लोकसभा इलेक्शन में अलग तरीके से देती हैं. बहुत स्टेट्स में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं भाई नहीं नहीं इस स्टेट में तो हम इनको देंगे लेकिन सेंटर में हम XYZ को देंगे, राइट? And that is, I think that's become amplified with the Modi government because there is a lot of that sentiment कि स्टेट में हम इनको देंगे लेकिन प्रधानमंत्री तो हमको मोदी जी को देना है, टाइप थिंग. सो women now know you can't fool them. They know credit किसको जाना चाहिए, कि आपको स्कीम अगर नहीं मिली है तो आपके सरपंच की वजह से नहीं मिली है, या आपको स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिली है, या सेंटर ने ही आपके लिए स्कीम नहीं निकाली है. और अगर मिल रही है तो किसकी स्कीम है, सबको पता है कि कौन सी मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है, या और कौन सी, मान लीजिए केसीआर ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी तेलंगाना में, सबको पता है कि राइतु बंधु केसीआर की है लेकिन उज्ज्वला मोदी गवर्नमेंट की है. एवरीबडी नोज. सो दीज women are now more aware of who's giving them what and who's not giving them what, which makes it difficult to fool them. You can't snatch credit from anybody and you can't try and pass the blame to anybody else. Beautifully said, beautifully said. And I'll again would want to show the book to everyone. This is a must-have book. As I said, Ruhi, ये तो मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट करने वाला हूँ. बिल्कुल, I'll be very happy and do let me know what she thinks. Yeah, it's very important, and thank you for being so open and for not holding anything back. क्योंकि मुझे लगता है रूही ये सब सवाल डिस्कस ही नहीं करते लोग बाग. आपके अंदर भी जो चीजें चल रही होती हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी ओपन डिस्कशन. एंड थैंक यू कि आपने इतनी अच्छे से डिस्कशन ओपनली आपने करा और आपने एकदम व्हाट यू रियली बिलीव्ड इन, you were able to share that, and I hope I was able to do justice to this topic because very Absolutely. interesting topic.